अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। Okay, grade 8. We have started chapter number 11 and we did yesterday definitions. Till 5. Definition 5 was right angle triangle. Now today chapter is basically based on congruence. Congruence means equal or same. So who is joining? Aisha. Next heading is number 6. Definition 6 is definition number 6 is congruent triangle. What are congruent triangle? Triangle. Right? Now, congruent means equal. It means we have to see there is comparison between two triangles. Two triangles are said to be congruent. Write down. Two triangles are said to be congruent if their corresponding angles and corresponding sides are congruent. Congruent, this is the sign of congruent, are congruent or equal. Two triangles are said to be congruent if their corresponding angles and corresponding sides are also congruent or equal. Means टीचर yes, टीचर आपके बैग से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बैक से बेटा आप अपने साइड से फिक्स करें, यहाँ तो कोई
वो नहीं है डिस्टर्बेंस? यस, एनी प्रॉब्लम? अब बताएं। टीचर अभी भी आ रही है आवाज। You have problem from your side. There is no disturbance. Too far. Okay, now two triangles are said to be congruent or equal if their corresponding angle and corresponding sides are also congruent or equal. It means you can understand from these figures. For example, yeah, if you have these two figures, triangles. तो अगर हम कह लें these are angles A, B and C or vertices, right? And similarly it is represented by XYZ. इसको XYZ से कर लें. Compare these two triangles. So AB side AB is congruent to its corresponding side XY. ठीक है? Now side BC in this triangle ABC, side BC is congruent to in this triangle side YZ. Right? And similarly this side AC third side, that side इसको represented by three vertical line. तो ये इसकी इसकी इस ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो जाएगी? एक्स जी 1 2 3 ये. So this side is congruent to this side is congruent to this triangle, this side and this side AC is congruent to in this triangle GY, GX. ठीक है? Similarly, angle A is congruent to angle X. These are called corresponding angles. Lines it means they are. This is first side और इस ट्रायंगल में ये फर्स्ट साइड है, इस ट्रायंगल में साइड नंबर 2 है तो ये 2 हो गई, इस ट्रायंगल में साइड नंबर 3 है तो ये 3 हो गई. ठीक है? सिमिलरली एंगल ए इज congruent to angle Z, एंगल B in this triangle is congruent to corresponding angle Y. अब यहाँ पर एंगल C is congruent to in this triangle angle B. So these triangles are congruent to each other. यानी कि ट्राइंगल A B C is congruent to triangle X Y Z. We can say these two triangles are congruent, right? ये सब आपकी टर्म जो है ग्रेड 9 में और 10 में यूज होंगी. टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट और ये एमसीक्यू में भी आ जाती है. If their corresponding angles and corresponding side are also congruent, right? Now next number 7, and draw these figures also. 1 to 1 corresponding between two triangles. Number next 7, 1 to 1 correspondence between two triangles. Triangles. Number 7. अच्छा, the symbol of correspondence is. टीचर ये पूरा डेफिनेशन का नेम है. ये name. I don't have it here. That's why I will read it from next time. अब तो continuation में लिखूंगा क्योंकि I have drawn figure here.
The symbol of correspondence is this. Represented by this sign. This is the sign of correspondence. Correspondence means we are going to compare. जैसे यहाँ हमने compare किया है side to side और angle to angles, right? If we are saying that triangle, I have to erase the board. Jल्दी से quickly copy down, then I will erase. और ये हमना is joining again. अच्छा कल का टेल मी द आंसर ऑफ यस्टरडे टेस्ट. यस मोहम्मद अली, फाइंड द आंसर ऑफ यस्टरडे क्वेश्चन. अक्सा किस्सा, डिड यू फाइंड? I gave you yesterday. I gave you end of the class one question using quadratic टीचर formula. Yes. टीचर नेट में मसला आ गया था तो मेरी क्लास लीव हो गई थी अचानक से Okay. Right. एंड में. Anyone else? Aliza, did you find? You attend the class yesterday class. Aksa kissa. Teacher, I have sent it in the group. Teacher, I already sent it in the group. Okay, I will check. Okay, I am going to erase the board now. ये देखिए इसी का नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा. ये दिस इज द साइन ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम नेक्स्ट लाइन. नाउ सी इन ट्राइंगल. अब हम इसी फिगर को कंसीडर करेंगे. इन ट्राइंगल ABC कॉरेस्पॉन्डेंस जो फिगर्स है ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को भी कवर कर रही हैं और ये डेफिनेशन नंबर 7 को भी कर रही हैं. कॉरेस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल XYZ. टीचर ये आप 7 डेफिनेशन का ही कंटिन्यू करवा रही हैं. Continue from next line. ये after that. The symbol of correspondence is this and then from next line is this. The correspondence in triangle ABC. Correspondence to triangle XYZ. ये अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं. ये मैंने आपको एडवांस से बता दिया था. ये ठीक है. अब हम ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन यूज करेंगे. ट्राइंगल ABC बाय द यूज ऑफ सिंबल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस. आप वर्ड्स के बजाय इसका साइन यूज कर लें. टू ट्राइंगल XYZ. ठीक है. We have 3 sides and 3 angles. I explained in the figure. तो पहले हम एंगल्स को ले लेते हैं. हम एंगल है इन दिस ट्राइंगल ABC. एंगल, दिस इज द साइन ऑफ एंगल. एंगल A कॉरेस्पॉन्डेंस टू इन दिस ट्राइंगल. कौन सा कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल हो जाएगा? एंगल A. ये एंगल A है तो इसका कॉरेस्पॉन्डेंट एंगल हो जाएगा इन दिस ट्राइंगल X. देखिए इस ट्राइंगल में के एलिमेंट, इस ट्राइंगल को हम कंसीडर करें XYZ तो इसी के एलिमेंट लिखेंगे. इधर ABC कंसीडर करें तो इसी के एंगल और साइड लिखेंगे. ठीक है. दिस इज फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस. अब हम दूसरा एंगल कंसीडर कर रहे हैं. C का बेस एंगल
second base angle is B, angle B. So in the correspondence to in this triangle, angle Y, angle Y. ठीक है, नेक्स्ट एंगल है, थ्री एंगल्स होते हैं यू नो, corresponding to angle C in this triangle ABC, angle C corresponding to in this triangle angle Z. ठीक है, ये corresponding angles कराते हैं, इस तरह से कंपेयर करते हैं। अच्छा, इसी तरह से आपने थ्योरम में भी करना है, जब थ्योरम करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डेंस इस तरह से होते हैं, उस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ये फिगर में कंटिन्यू, यही फिगर कंटिन्यू होगी, इसमें एक दफा रिड्रॉ कर लें बस, वही दोनों में कवर हो जाएंगे। ओके, नाउ ये तो हो गया एंगल्स। नाउ साइड। टीचर यस टीचर, 7 डेफिनेशन में भी ये फिगर ड्रॉ करनी है। 7 डेफिनेशन जो है ये कंटिन्यूएशन है, और ये यही सेम फिगर्स कंटिन्यू होंगी। ठीक है टीचर, इस फिगर को ड्रॉ करना है 7 के डेफिनेशन के साथ। नहीं, यही कंटिन्यू करेंगे, इसी को फॉलो कर रहे हैं हम। ठीक है, यही दो फिगर्स। अच्छा, ओके टीचर। जरूरत नहीं है। अब हम, ये तो एंगल्स हो गए। नाउ टेक साइड, साइड ए बी in this triangle ABC. ये first side AB, that's why I have cut this line by one line. Correspondence to triangle in this side XY. In this triangle XY. ठीक है, अब next line left side कौन सी हो जाएगी? Side BC. In this triangle side BC. ये side का साइन होता है, और लाइन सेगमेंट दोनों का सेम होता है। इट मीन साइड और लाइन सेगमेंट BC, और इन दिस ट्रायंगल YZ। ठीक है, अब एक और साइड रह गई, साइड नंबर 3, 1 2 3, साइड AC correspondence to in this triangle side XZ। ठीक है, so we can say therefore, याद रखें ये therefore का साइन है, ये डॉट्स लाइक दिस, 3 dots like this। therefore we can say triangle ABC is congruent to triangle XYZ। triangle ABC in X, इसी के नीचे लिखिए ट्राइंगल, therefore लिखिए ट्राइंगल ABC, इसी के नीचे आ जाएंगे ना, इसी के में कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट का साइन आएगा, अब ये कॉरेस्पॉन्डेंस का नहीं आएगा। कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ। ठीक है, जब 3 angles and 3 sides of one triangle are congruent to 3 angles corresponding 3 angles and 3 sides of the other triangle, then these 2 triangles are congruent to each other। ठीक है, now टीचर नीचे ट्रायंगल ABC लिखा है। ABC, हाँ ABC। congruent to triangle XYZ, राइट, ये हो गए कंप्लीट। अच्छा, अब इसमें प्रॉपर्टीज भी हैं। ये अगर आप देखें ऑन पेज नंबर, इफ यू ओपन पेज नंबर 344, वी हैव SSS congruence test। ठीक है, SSS congruence test। वी हैव डिफरेंट टेस्ट, टेस्ट मीन्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब मैं टेस्ट प्रॉपर्टीज ही यूज करूंगी, क्योंकि ये 9 और 10 में दीज आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज, राइट। तो आप वही एक ही आपके माइंड में रहेगा, टेस्ट मीन्स प्रॉपर्टीज। वी हैव 4 प्रॉपर्टीज बेसिकली, जो कि आपके ग्रेड 9 और 10 दोनों में कंटिन्यू होंगी। ओके,
That's why I have to erase the board. अब आप लिखिएगा give heading of properties. अब नजर आ रहा है properties. Properties और test. आपके ग्रेड में यहाँ पर टेस्ट कहाँ है इसको प्रॉपर्टीज को, ठीक है. राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग प्रॉपर्टीज और इन ब्रैकेट टेस्ट. written all this thing? Have you written? टीचर ये भी डेफिनेशन यस है. टीचर. Starting with 2 lines. First 2 step. करें अच्छा first property name is side. Write down number 1. Page number 344. ये देखिए on 344 SSS congruence test और टीचर फर्स्ट वापस से बता दें प्लीज. writing on that. You draw these figures quickly. कर ले ताकि नंबर 1 प्रॉपर्टी नेम. पहले तो आपकी बुक का नाम दूंगी मैं. SS congruence test. You can see on page number 344. On page number 344. S means side. यानी आपने साइड कंसीडर करनी है, ठीक है. कॉन्ग्रुएंस टेस्ट. टीचर इनकी डेफिनेशंस है. डेफिनेशंस, हाँ डेफिनेशंस ही है ये. अच्छा रूल एक तरह से है ये. और साइड प्रॉपर्टी. साइड SSS is the abbreviation of side. Or congruence test with, or it is also called property. SSS property. ठीक है. This is your number 1 property or test. ओके ना. राइट डाउन. इसमें हमें क्या देखना है, नाम से ही पता चल रहा है. 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides corresponding 3 sides of the other triangle, then the 2 triangles are congruent. ठीक है. तो लिखे if 3 sides of a triangle of one triangle are equal to the three corresponding ये corresponding है, word is corresponding. 3 sides of the other triangle. Then the 2 triangles are congruent. Are congruent. Three sides 1, 2, 3. 3 sides of one triangle are equal to the corresponding 3 sides of the other triangle. Then the 2 triangles are congruent to each other. ठीक है. Again we will compare. Right?
कंपेयर टू ट्राइंगल। यही अगर हम इसी को रीड्रॉ कर लीजिएगा, इसके आगे सेम फिगर ये रीड्रॉ कर लें। देखें ए बी सी एंड अदर वी हैव अदर ट्रायंगल एक्स वाई जी, थ्री साइड्स 1 2 3 ये आर कॉन्ग्रुएंट टू द corresponding three sides of the other triangle, then the two triangles are congruent. This is your SSS property. SSS congruent to SSS, यानी three sides of one triangle are equal to the corresponding three sides of the other triangle, then the two triangles are congruent. According to टीचर ये फिगर इसके साथ भी ड्रॉ होगी? हाँ, this is called SSS property. मैं आगे लिखिएगा property, इसके भी नीचे लिखिए property। ये जब आप थ्योरम करेंगे उस वक्त ये टर्म्स यूज होंगी कि हम इसको किस प्रॉपर्टी के थ्रू इक्वल कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको समझ में आएगा ये ज्यादा इजीली। और फिर जब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज 11A करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, तो उस वक्त और इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, नाउ next property, ये आप draw this figure again in front of this, या इसके बाद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेम इज, अब आप आ जाएं ऑन पेज नंबर 345, 45 बल्कि 46 पर है, ये 46 पर है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस टेस्ट, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस टेस्ट नंबर 2। अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पर साइड एंगल साइड, पहले तो आपका वही लिख रही हूँ मैं जो बुक में गिवन है, SAS S.A.S, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस टेस्ट। और वी कैन से, ये तो आपके बुक का मैंने डेली कर दिया। अब हम 9 और 10 में जैसे करते हैं तो ये हो जाएगा साइड एंगल, A फॉर एंगल, अगेन साइड, यानी S.A.A प्रॉपर्टी। ये नंबर 2 प्रॉपर्टी, ठीक है, लिखेंगे। Now give heading of this. Now write down. लिखें, if two sides, पूरा एक डेफिनेशन के लिए ये हाँ SAS कॉन्ग्रुएंस टेस्ट और साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। टीचर ये जो पॉइंट लिखवा रही है ब्लू से उतारने ब्लैक से? ब्लैक, एंड राइट द स्टेटमेंट विद ब्लू। अच्छा, लिखें, राइट डाउन। इफ, अब यहाँ पर कितनी साइड्स हैं? 2 साइड्स हैं, ठीक है। रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी हैव 2 साइड्स हियर एंड इन बिटवीन एंगल, एंड इन बिटवीन एंगल, इन बिटवीन को कहते हैं ज्योमेट्री में इंक्लूडेड। इन बिटवीन मीन्स दरमियाना, 2 साइड्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ट्राइंगल है आपका।
अब ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है, और इन बिटवीन एंगल क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो इसको यहाँ कहते हैं आपकी, यहाँ पर इन बिटवीन तो हम अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो ग्रामेटिकल लैंग्वेज होती है, टर्म होती है, इन बिटवीन कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, बीच का एंगल, बिटवीन टू साइड्स। तो टू साइड्स के दरमियान का एंगल ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। अब इसकी भी फिगर चेंज करनी पड़ेगी, तो लिखें इफ टू साइड्स, राइट डाउन, इसी वर्डिंग को हम यूज करें ताकि आपको लर्न करने में भी आसानी रहे। अब यहाँ थ्री साइड तो होंगे नहीं, टू साइड, इफ टू साइड एंड वन एंगल of one triangle are equal to the अब क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू द कॉरिस्पॉन्डिंग अभी यहाँ नहीं आएगा, नहीं कॉरिस्पॉन्डिंग, ऊपर इरेज करना पड़ेगा, equal to the corresponding two sides and one angle, corresponding two sides and one angle of the other triangle then the two triangles are congruent. अब इसकी फिगर देखिएगा, फिगर में इसी को यहाँ पर करती हूँ, first draw ABC, again compare two triangles, first triangle and second triangle, keeping the same name ABC. ये आपके दो बेस पॉइंट है, 1 and 2, and this is C, angle A, angle B, angle C. Same here, so X, Y और Z angle. These are your angles. ठीक है, अच्छा, टू साइड्स उन्होंने कहा है, टू साइड्स एंड वन एंगल। ये टू साइड ऐसा देख लें कि टू साइड्स के दरमियान का एंगल देखें आप, ये टू साइड से देखें, सी है फ्रॉम फिगर, साइड वन, और इस ट्रायंगल में कौन सी साइड, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी जाएगी, एक्स जी, ये हो गए साइड वन, ठीक है, और साइड टू कौन सी हो गई, ये BC, और इस कॉरेस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई, YZ, ठीक है। इनका इंक्लूडेड एंगल मींस बिटवीन एंगल कौन सा है, एंगल C, इसको मैं शेड कर दूं, इससे पता चल जाएगा ये बीच का एंगल है, AB साइड AC और साइड BC के बिटवीन एंगल इज C एंड हियर एंगल सिमिलरली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इज Z, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पर
we can say कि if two sides and included angle or one angle of one triangle is congruent to the corresponding two sides and one angle of the other triangle, then the two triangles are congruent. We can say triangle ABC is congruent to triangle XYZ. ठीक है, ये हो गया। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। Same here, side angle side property or side angle side congruence test। ठीक है, ये ड्रॉ कर ले in front of this। Yes, after writing this, draw these two figures। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी हो गई। अब एक और दो, we have two more। Time is short. Any question you want to ask from your revision, from your first term syllabus? Any question? बताएं। No teacher. No. चले, how much time is left? 2 minutes are left। चले, एक और क्वेश्चन दे दी हूँ मैं, जरा ये करें आप अकॉर्डिंग टू 46। टीचर ये कंप्लीट कर रहे हैं अभी तो। सारे आंसर करें, कंप्लीट इट। एट एनी मोमेंट वी कैन डिस्कनेक्ट। ओके, वी हैव टू मोर प्रॉपर्टीज, वो अब इस क्लास में नहीं होंगी, नेक्स्ट क्लास। यू कैन सी ऑन पेज नंबर 340। थ्री फिफ्टी ऑन पेज नंबर 350 AAS कॉन्ग्रेंस टेस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है RHS कॉन्ग्रेंस टेस्ट। ये दो रहते, 350 पे देख लीजिएगा और 352 पे देख लीजिएगा। ये बॉक्स जो है नीचे गिवन है ना, RHS कॉन्ग्रेंस टेस्ट, ये बॉक्स ये रीड कर लीजिएगा। चाहे तो उतार भी सकते हैं आप, इसको कॉपी डाउन भी कर सकते हैं। बॉक्स में जो गिवन है उसकी डेफिनेशन। AAS यानी टू एंगल्स एंड वन साइड। ये पेज 351 पे बॉक्स गिवन है, बॉक्स में गिवन है प्रॉपर्टी डेफिनेशन, तो यू कैन कॉपी डाउन फ्रॉम बुक ऑल्सो। ये बुक में है आपके पास, देखिए पेज 351 यहाँ पर गिवन है बुक बॉक्स में। ओके, class is going to end। Assalamu alaikum, take care of yourself, stay home। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।